Today I am Prasanna and I, Pranav, behalf of welcome you all to the occasion of Earth Day. So now I would like to introduce our institute to you all. Geetanta International Business School was established in the year 2004 under the aegis of Rohini Educational Society, which is affiliated to Guru Gobind Singh International University, Delhi, and is approved by All India Council for Technical Education, Ministry of HRD, Government of India for Technical Programs, and Bar Council of India for Law Programs. Center for Legal Studies has been set up at GIBS in the year 2016 for imparting legal education. CLS GIBS has emerged as one of the most prominent law schools of the country for providing 5-year integrated programs in BLLB and BBLLB. The institute also conducts programs like MBA, MBA International Business, BBA General, both first and second shift, BLLB and BBLLB. GIBS has been graded A by the National Assessment and Accreditation Council in second cycle. GIBS has been rated A+ by the State Fee Regularity Committee, a fee committee of Government of NCT of Delhi. It has been rated the highest grading A by the Joint Inspection Committee of Government of NCT of Delhi and GGSIP University since 2013 till date. GIBS has been ranked number 1 for third consecutive time as top emerging BB institute in India and ranked number 2 for top emerging BB institute in place. Delivering community service. Heritage. The Cultural Society of GIBS is a voluntary youth movement which promotes intangible aspects of Indian cultural heritage by promoting Indian classical music, classical dance, folk music, yoga, meditation, crafts and other aspects of Indian culture. The objectives of our initiative are multifaceted, aiming to catalyze awareness and action towards environment sustainability. Firstly, we seek to elevate consciousness about pressing environmental issues that underscores the significance of Earth Day as a pivotal movement for reflection and action. Secondly, we endeavor to introduce the champion practical sustainable living practices that individuals can seamlessly integrate into their daily routines, thereby reducing the environmental footprint. Lastly, we aspire to foster a spirit of collective action and community engagement. Together, we embark on a journey towards more sustainable future, embodying the ethos of Earth Day every day. Now I would request Neelam ma'am to kindly facilitate sir with the sampling. Thank you. In order to fulfill our intent, we have with us Mr. Rakesh Khatri, a documentary filmmaker by profession and an environmentalist at heart. Made a significant career shift to focus entirely on environment conservation in 2008. His commitment to ecosystem preservation, particularly and addressing the declining population of birds residing in human-populated areas such as sparrows, myna, and robin, has been marked remarkable. Through extensive innovation and experimentation, Mr. Khatri successfully developed nests made from bamboo, cloth, jute, and cotton, among other materials, boosting an adoption rate exceeding 75%. This achievement has contributed significantly to the recovery of sparrow population, which faced a steep decline in 2008, and now we are thriving. Mr. Khatri has spearheaded multiple innovative projects supported by various corporates and institutions. These initiatives are aimed at igniting thought and action towards environmental preservation, biodiversity, and ecosystem conservation. As the founder and managing trustee of EcoRoots Foundation, Mr. Khatri has dedicated his life to inspiring young minds to champion environmental conservation. His exceptional contributions in this field were honored with the prestigious the National Science Award 2020-21 by the Ministry of Science and Technology, Government of India. This recognition underscores his effort in working with children to initiate dialogue and concrete actions for environmental protection. Now, I would like to request Sir to come up on the stage and enlighten our audience. मैं क्यों बनाता हूँ उनके लिए? बताइए क्योंकि अभी नेचुरली पहले पुराने घरों की तरह है नहीं, कंक्रीट के, इसलिए पहला दूसरा आप लोगों ने कहाँ देखा था? जो थोड़े उम्र में बड़े हैं उन लोगों ने कहा उम्र में तो खैर अपने आप को कोई बड़ा मानता नहीं। पहले कहाँ देखा था दूसरा? घर के अंदर सबसे पहले कहाँ देखा था?
एसी के ऊपर तो खैर वो चिड़िया नहीं बनाती। चिमनी के ऊपर पंखे के कप में देखा किसी ने घोंसला? वो उसका सबसे फेवरेट जगह होती थी जहाँ वो घर में घोंसला बनाया करती थी। मेरी ज़िंदगी की जो शुरुआत हुई वो 7 साल की उम्र से हुई। मैं सिविल लाइन स्कूल में पढ़ता था दिल्ली कैसे, और चांदनी चौक में रहा करता था। तो जब मैं घर आता था सबसे पहले मेरा काम होता था, मैं छत पे भाग जाता था। छत पे हमारे पास बहुत अच्छा सामान हमने रखा हुआ था चुरा के। एक टोकरी थी, कुछ कलर थे, कलर भी जो चांदनी चौक में तो घर बिल्कुल जुड़े हुए होते थे, जिसके घर में हाथ लग जाता था वहीं से छत के ऊपर नॉर्मली जैसे गेहूँ सुखाना या अचार बनाना, ये सारी चीज़ें घर की वहीं छत पे हुआ करती थी। तो हमारे घर की जो इधर की दीवार थी एक तरफ की, उसकी ईंटें बहुत सारी मेरे ग्रैंडफादर ने निकाली हुई थी। उसके अंदर वो चिड़िया अपने घर बनाया करती थी। वो उन्होंने उनके लिए एक बकायदा कॉलोनी पूरी बना दी थी। मैं क्या करता था, जब वो टोकरी लगा के बैठ जाता था और चिड़िया आती थी तो हम लोग उसको बंद कर दिया करते थे और खूब रंग लगा के उसको उड़ाया करते थे। और ये देखते थे कि वो कितनी देर में वापस आती, तो बेचारी को आना पड़ता था क्योंकि उसका तो घर नहीं था, बच्चे थे, अंडे थे, सब कुछ था। और उसके बाद जब मैं नीचे आता था तब तक मेरे फादर सामने एक बैंक हुआ करता था, आपने सुना होगा, ANZ बिजनेस बैंक हुआ करता था। मेरे फादर उसमें काम करते थे। वहाँ से दोपहर में लंच के टाइम में आते थे और वो मेरा पिटने का टाइम होता था सबसे ज़्यादा। मुझे इसीलिए पकड़ के कान पकड़ के खींचा जाता था कि आज फिर चिड़िया को उड़ाया, और मैं कहता था हाँ मैंने उड़ाया। तो वहाँ से मेरी शुरुआत बेसिकली घोंसले से तो मेरा लगाव हुआ, वो इसलिए हुआ। और घर की एक सबसे बड़ी खासियत ये थी कि पुरानी दिल्ली के अंदर घर की छत जो थी वो बहुत ऊंची हुआ करती थी और पंखा बहुत ऊपर होता था। तो उस पंखे में जो चिड़िया घर बना लो के बाहर निकलने तक 50 से 52 दिन लग जाते हैं चिड़िया को, 57 दिन। तो उतने दिन तक वो पंखा नहीं चलता था। और बसंत पंचमी जैसी शुरू होती है चिड़िया अपना घर बनाना शुरू कर देती है और अक्टूबर के एंड तक अपना घर बनाती है। मैं 14 साल का हो गया था, फादर की अचानक डेथ हो गई, बैंक की सीढ़ियों से वो गिर पड़े तो उनकी डेथ हो गई। उसके बाद एक जिम्मेदारी पूरी मेरे ऊपर आ गई, तो मुझे पहली नौकरी 14 साल की उम्र में परफ्यूम की फैक्ट्री में करनी पड़ी। ये आप सुन सकते हैं, करीबन 300 से ज़्यादा फिल्में मेरे ऊपर बनी है, डिस्कवरी से लेकर नेशनल ज्योग्राफी ने बनाई है, उनमें सारी कहानी है ये। लेकिन जब मैं वहाँ नौकरी करता था तो मुझे वहाँ बंडल बांधने पड़ते थे परफ्यूम की छोटी शीशियाँ। परफ्यूम जैसे अब बड़ा आता है और फॉग वाले और दूसरे आते हैं, पहले छोटा लीटर की शीशी आया करती थी, तो उसको मिला के परफ्यूम बनाया जाता था। तो मैं जब बांध देता था बंडल, अपनी धुन में रहता था, बहुत छोटा था तो अपनी धुन में रहते थे और बंडल बन के चला जाता था। तो हर महीने कुछ ना कुछ पैसे कट जाते थे, क्योंकि जब वो डेस्टिनेशन में पहुँचता था तो उसमें कोई ना कोई शीशी टूट जाती थी, तो वो ओनर पैसे काट लिया करता था उस चीज़ के। लेकिन वो रस्सी जो मैं बांधता था, इस साल मेरी ऑटोबायोग्राफी आ रही है जो मैंने बड़े मन से लिखी है बैठ के, उसका पहला प्रीफेस ही है कि मैं जब वो रस्सी बांधा करता था तो मेरे हाथों से म्यूजिक निकलता था कि मैं अपनी रोजी रोटी कमा रहा हूँ। और अब मैं जब घोंसला बांधता हूँ जो आपने हाथ में देखा, जब मैं अब उसको बांधता हूँ तो अब एक और म्यूजिक निकलता है, मुझे लगता है कि मैं उन चिड़ियों को घर दे रहा हूँ जिनका घर हम लोगों ने छीन लिया। तो ये कहानी बस चलती गई। मैं वहाँ से फिर अशोक विहार शिफ्ट हो गया। अशोक विहार में आने के बाद फिर यहाँ जब रहने आया तो सबसे पहले देखा कि यहाँ अर्बन कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी। कोई पेड़ मिलते ही नहीं थे, पेड़ मिलते थे पर नेटिव ट्रीज नहीं मिलते थे। ऑर्नामेंटल ट्रीज हम लोगों ने जगाने शुरू कर दिए। आप भी देखें तो आपके आसपास ऑर्नामेंटल बर्ड्स ऑर्नामेंटल ट्रीज के ऊपर अपना घर नहीं बनाते, तो वो बड़ा दुख होता था कि आप घोंसले नहीं है। अच्छा, उस दौरान में साउथ से हरा नारियल आना शुरू हो गया था। आप आगे आ जाओ सर थोड़ा सा, कोई बात नहीं आप लोग। तब साउथ से हरा नारियल आना शुरू हो गया था, तो हमें लगा कि ये काम की चीज़ है, क्यों ना इससे घोंसले बनाए जाए। तो हमने हरा नारियल लेके उसको खाली करा, लोगों से कूलर की घास ली जो साइड में लगी होती थी उसको धो के सुखाया और उसको हरे नारियल को खाली करके उसमें खूब सारे अखबार डाले, अखबार कतरन ने डाल के उसको भर दिया और उसके ऊपर वो जूट लगा के, वो जो कूलर की घास होती है रस्सी बांध के, और एक घोंसले के शेप में हमने 40 घोंसले लगा दिए। उनके ऊपर हमने नंबर लिख दिया मार्कर से। हमें लगा कि अब ये बहुत कमाल का काम हो गया, घोंसले लगा दिए, उसमें चिड़िया आ जाएगी। 15 दिन तक वेट करते रहे, उसमें कुछ नहीं आया। और हुआ क्या कि उसका मॉइस्चर सारा का सारा अखबारों ने लेना शुरू कर दिया, तो वो श्रिंक हो गए, छोटे हो गए और वो सूख गए, तो बेकार हो गए। तो गुस्से में उतारना शुरू करा उनको, जैसे आमतौर पर गुस्सा आता है। तो जब 38 नंबर तक उतार लिया तो उसमें कुछ नहीं था। 39वें नंबर के अंदर 2 छोटे छोटे बुलबुल के बच्चे थे। वो शायद एक सबसे बड़ी होप मिली कि अच्छा ये काम हो सकता है, अगर आप घोंसला बनाएं तो ये चिड़िया आ सकती है। अमूमन तौर पे आप लोगों के मन में ये है कि चिड़िया तो अपना घोंसला खुद बनाती है, आदमी का हाथ लग जाए तो उसके अंदर आती नहीं है। पर अब क्योंकि वो चीज़ें हैं नहीं, अब उसके लिए कोई जगह हमने छोड़ी नहीं, ना रोशनदान ना कुछ। जबकि कहा जाता है कि जिंदगी में हमेशा एक रास्ता जरूर खुला रखना चाहिए, चाहे आप रिश्तों में रखें या घर के अंदर रखें, कि आने जाने की आसानी रहे उसमें। हमने वो सब बंद कर दिया।
अब इतनी चीजें आ गई हैं कि लोग 3-3 हज़ार रुपये सिर्फ इसी चीज के खर्च कर देते हैं कि उनके एसी के ऊपर कबूतर ना बैठे। देखा आपने, डिश एंटीना के ऊपर लोगों ने कांटे के कीलें लगानी शुरू कर दी कि उसके ऊपर कोई चिड़िया आके ना बैठ जाए ताकि वो ना खराब हो। तो हमें अब सिर्फ क्या लगता है, हमें लगता है कि जो हमारे लिए उसको हम यूज करें, दूसरा कोई यूज ना करे। तो बड़ा अजीब लगा, सब कोई बात नहीं। फिर वहाँ से शिफ्ट हो गए हम लोग, फिर मयूर विहार चले गए। तब 48 की एज हो रही थी और शीला दीक्षित जी के यहाँ मैंने ज्वाइन करा जो चीफ मिनिस्टर थी, तो इन्वायरमेंट की क्लासेस किया करते थे हम लोग। कॉलेज भी करता रहा, साथ साथ पढ़ता भी रहा, रोजगार भी करता रहा। थोड़ा सा दुविधा का टाइम होता था, अब वो दुविधा बच्चे नहीं सह पाएंगे। हम लोगों ने वो दुविधा बहुत बुरी सही है उस जमाने में। तो वहाँ जब करते थे तो तब ये हुआ कि चलो घोंसले फिर दोबारा बनाने शुरू करते हैं। तो गड़ी मांडू एक जंगल पड़ता है यहाँ वजीराबाद के पास। मैम ने कहा मुझसे कि अच्छा तुम वहाँ बैम्बू का जंगल लगा रहे हैं और वहाँ पूरा अर्बन जंगल भी है, वहाँ कुछ घोंसले लगाना शुरू करते हैं। तो मैं वहाँ घोंसले लगाने जाया करता था। 2008 की बात है, वो पहला टाइम था जिसने मुझे नेशनल बनाया, जिसने मुझे दुनिया में पहुँचाया। मैं वहाँ घोंसले लगा के वापस आ जाता था रोज। एक दिन वहाँ एक माली थे जो बैठे रहते थे अर्बन, उस फॉरेस्ट में, वो अर्बन फॉरेस्ट था और दिल्ली गवर्नमेंट का था। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने कहा अच्छा आप इधर आओ, क्या करते हो? मैंने कहा मैं घोंसले लगाता हूँ। तो बोले बैठ जाओ। मैं बैठ गया, उनके पास बात करते रहे बहुत देर तक। मुझे भी उनकी बातों से लगा जैसे नेचर का भेजा हुआ कोई नुमाइंदा है या खुदा का भेजा हुआ नुमाइंदा है जो आपको रास्ता दिखा रहा है। आपको रास्ता तो सब दिखा देते हैं, अच्छा इधर चले जाओ जी, यहाँ से ये तरक्की मिल जाएगी, ये पढ़ लो, डॉक्टर बन जाओगे। और उंगली पकड़ के कोई नहीं सिखाता, पर वो पहला शख्स था जिसने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया। उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली तो मैंने पहले बोली थी। उन्होंने कहा इस काम को बंद मत करना, ये बहुत मुकद्दस काम है, ये काम तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा, क्योंकि तुम उनको घर दे रहे हो जिनका घर हम लोगों ने छीना है, तो इसको बनाते रहना। और उन्होंने उस एज में भी अपनी जेब से कुछ निकाला और मुझे दिया। मैंने वो हाथ में रख लिया और मैं बाहर आ गया। बाहर आके देखा तो वो 150 रुपये थे। वो मुझे 150 रुपये इसलिए अच्छे लगे कि मेरी पहली जो सैलरी थी वो भी 150 रुपये थी। मैंने घर आके बताया, घर वालों को भी बड़ा अच्छा लगा। फिर वो जिंदगी चलने लगी, धीरे धीरे बनाते गए घोंसले लगाने की कहीं कोशिश करते थे, नहीं होता था। फिर 2008 में फरवरी के अंदर बसंत पंचमी के ठीक तीसरे दिन मैंने एक कोंडली करके एक जगह हमारे घर के पास पाना, तो वहाँ मैंने सबसे पहला घोंसला, हमने 20 घोंसले बैम्बू स्टिक से बनाए और वो लगाने के बाद एक घोंसला लगाया और 19 हमने उनके घर में रख दिए जिनके घर के पास हमने लगाया था। 3 दिन तक मैं डॉक्यूमेंट्रीज करता था, 3 दिन तक हम अपने कैमरे लेके बैठे रहे, मेरी टीम के बच्चे भी बैठे रहे मेरे साथ। कोई चिड़िया नहीं आई उसके अंदर। लोग निकलते थे, कोई दूध लेने जा रहा, कोई सब्जी लेने, तो यही कहते थे अच्छा आ गई चिड़िया। मैंने कहा नहीं, तो आपके घोंसले में नहीं आएगी चिड़िया, अपना घोंसला खुद बना। तो मैं उनको फिर एक ही सवाल पूछता था, अच्छा आपने चिड़िया के लिए जगह कहाँ छोड़ी है? वो उनको शायद वो निरुत्तर कर जाता था। वो कहते थे कि हाँ ये बात तो सही है। क्या 3 दिन पूरे हो गए तो हमें लगा कुछ नहीं होगा। संडे का दिन था, मैं जब वापस घर से सुबह जा रहा था, मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा, वो लोग सपोर्टर रहे शुरू से, तो उन्होंने मुझसे पूछा वहीं? मैंने कहा हाँ मैं वहीं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा आज चिड़िया नहीं आई तो हम ये काम बंद कर देंगे। हम जो बाकी इन्वायरमेंट के काम करते हैं, इको थिएटर करते थे, तालाबों को जिंदा करते थे, कुओं को जिंदा करते थे दोबारा, मैंने कहा वही काम करेंगे, घोंसले का काम बिल्कुल हुआ। वो सबसे कमाल का चैप्टर है मेरी लाइफ का। 11 बजे तक चिड़िया सुबह 7 बजे से 11 बजे तक अपने घोंसले में आती है अगर उसके बच्चे या अंडे हैं, और फिर 3 बजे से 5 बजे तक या 6 बजे तक आती है। तो 11:10 में मैंने कैमरे पैक कर लिए थे। मेरे रेस्टोरेंट ने मुझसे अचानक कहा कि देखो देखो वो चिड़िया ने चक्कर लगाती हुई जा रही है उसको। तो एक मेल स्पैरो थी, उसने उस घोंसले के ऊपर बैठ के देखा। मेरी वेबसाइट पे देखिएगा कभी जाके, इको रूट फाउंडेशन की, उसके ऊपर वो फोटो है। उसने पूरा देखा घोंसला और वो उड़ गया वापस। उसने फोटोग्राफ तो कर लिया। 5 मिनट के बाद वो फीमेल के साथ आया और वाकई में उनके मुंह में घास थी। बड़ा फिल्मी लगा। उसने वो घास उसके अंदर रखी। मुझे भी लगा मेरा पहला घोंसला जो मैंने बैम्बू स्टिक से बनाया था वो अडॉप्ट हो गया। खड़े होकर ताली बजाई तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। अच्छा सबने कहा घोंसला हमें भी दे दो। और वाकई वो दिन था जिस दिन हमने लगाया, 17 फरवरी का दिन था, पहला घोंसला जो अडॉप्ट हुआ था। उसके बाद सब लोगों ने अपने घर पे लगाए वो घोंसले, बाकी 19 भी अडॉप्ट हुए। उसके बाद इस साल हम लोगों ने अपने 7,15,000 घोंसले पूरे करे। तो 14 साल का सफर तो लगा, लेकिन सपोर्ट आप जैसे लोगों की बहुत मिली, बच्चों की बहुत मिली। हम लोग शायद 7,000 स्कूल और 15 लाख बच्चों तक, कम्युनिटीज तक अब तक पहुंच चुके हैं। मेरी टीम, जैसे ये बच्चा जो आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, ये ब्रिस्टल से, लंदन से पढ़ के आए। इनको काम कुछ और करना था और पता नहीं क्यों ये मेरे पास आ गए, मेरे साथ ही काम कर रही है। ऐसे 10 बच्चे मेरे साथ जो भी काम कर रहे हैं अलग अलग जगह से पढ़ के। तो इन लोगों ने बहुत सपोर्ट करी, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट करी। इंसिडेंट बहुत हुए, नेशनल अवार्ड मिला, लिम्का बुक में 5 बार नाम आ चुका है, अब तक 5वीं बार आ रहा है।
इंटरनेशनल 4 अवार्ड है। और सबसे अच्छा ये लगता है कि स्कूल की टेक्स्ट बुक्स के अंदर आपके ऊपर 2 चैप्टर हैं, तो एक बड़ी उम्मीद मिलती है कि अच्छा बच्चे पढ़ेंगे और समझेंगे। और हर साल मतलब हर साल हम रोज के तकरीबन 200 से 250 घोंसले बनाते ही बनाते हैं। और भी बहुत सारे एनवायरनमेंट के काम करते हैं, लेकिन अब मैंने एक चीज़ फिक्स कर ली थी कि मैं बाकी काम सब अपने टीम को सौंपता जा रहा हूँ। मैं सिर्फ नेस्ट मेकिंग ही करता हूँ, बच्चों के संग जाके वर्कशॉप करता हूँ, कॉर्पोरेट में करते हैं हम लोग। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे अभी इस 3 महीने पहले गार्जियन लंदन ने 4 पेज का एक फोटो फीचर छापा, और उसके बाद मुझे तकरीबन 1500 मेल मिली है पूरे वर्ल्ड ओवर से। उन लोगों ने कहा कि आप आइए, हम आपको पैसा देते हैं, आप आके हमारे बच्चों को सिखाइए, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि चिड़िया घोंसला कैसे बनाती है या चिड़िया घोंसले में कैसे रहती है। और जिनके घर में 100 पूरा खानदान 100 बच्चों का और लोगों का है, वो कहते हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा अगर आप वहाँ से आए। ऑनलाइन मैंने बहुत सारे लोगों को बताया। उनमें एक गायनेकोलॉजिस्ट थी बेंगलोर की, वो अपने बेटे के पास आई थी ईस्ट ऑफ कैलाश। उन्होंने कांपते हुए हाथों से 85 ईयर्स के हैं, उन्होंने घोंसला बनाया, लगा के बेंगलोर में लगाया अपने घर। फिर उन्होंने अपने बेटे के हाथ एक चिट्ठी मुझे भिजवाई कि मैंने करीबन 1200 बेबीज को अब तक बर्थ करवाया होगा पूरी अपनी लाइफ स्पैन के अंदर, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये मिली कि जब मैंने घोंसला लगा दिया, उसके बाद उसके अंदर चिड़िया आ गई, और चिड़िया ने जब घर बना लिया और उसके बच्चे उड़ गए। तो मुझे लगता है घोंसला माँ की कोख की तरह शायद सबसे ज़्यादा पवित्र चीज़ है, जिसमें एक नया जीवन जाता है, निकलता है और वापस चला जाता है। ये जो घोंसला हम बनाते हैं, ये तकरीबन 3 साल तक चल जाता है, और इसकी कीमत मुश्किल से एक आइसक्रीम की ब्रिक जो आप लोग सबसे सस्ती वाली वनीला की मंगाते हैं 250 रुपये की, उसके बराबर है। पर ये 9 जनरेशन उसके अंदर रहती हैं और आती हैं। इसके अलावा हम लोग जो फ्रूटी के डिब्बे होते हैं, उनको मेल्ट करके उससे पूरा एक बोर्ड बनाते हैं बड़ा, उससे घोंसले बनाते हैं, वो भी उतनी कीमत का है। रोज खरीदते हैं लोग। हम लोग कुछ हैंड पेंटेड घोंसले बनाते हैं, जो लोग अपने बच्चों की बर्थडेज के लिए रिटर्न गिफ्ट के तौर पे ले जाते हैं। मुझे लगता है एक अच्छी प्रैक्टिस है, वो पैंडेमिक के टाइम में शुरू हुई थी। पैंडेमिक का टाइम सब लोगों के लिए बुरा आया, हमारे लिए भी बहुत बुरा था। हम लोग स्कूल में काम नहीं कर पा रहे थे, हमने ऑनलाइन सेशन शुरू करे उस दौरान में, और 70,000 हमने प्लास्टिक के डिब्बे से घोंसले बनाए, जो सक्सेसफुल हुए सारे के सारे। उसी दौरान में हमें ताइवान की गवर्नमेंट ने और मैक्सिको गवर्नमेंट ने 2 बड़े अवार्ड दिए, जिससे हमारा वो काम चला, जो हमारा स्टाफ था उसकी सैलरी भी निकली, और हम लोगों ने उनको कंट्रीब्यूट करा घोंसले बना के देने के लिए। जैसे आज भी हमने माउंट ऑफ स्कूल एक आपके यहाँ वहाँ एक अच्छा काम करा। हम लोगों ने प्लास्टिक वर्सेस प्लैनेट को लेके थिएटर सीरीज करी थी। बच्चों ने बहुत ही अच्छे थिएटर बनाए, और प्लास्टिक की पुरानी बोतलों से उन्होंने पीकॉक तक बनाया एक अच्छा सा, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी बना के लाए वो कि देख के लगा कि बच्चों की इनोवेशन कितनी है। हम लोग क्लाइमेट चेंज के ऊपर थिएटर कर चुके हैं, जो लिम्का बुक में, उसमें हमने करीबन 1,12,000 बच्चों को जोड़ा था पूरे हिंदुस्तान में 12 लैंग्वेज में। फिर वाटर कंजर्वेशन पे थिएटर किया। इस साल हम लोग SDG गोल्स के ऊपर थिएटर कर रहे हैं, और 1000 स्कूल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूरे साल वो थिएटर चलता रहेगा, अलग अलग शहरों से वीडियो बना के हमें भेजते जाएंगे। तो ये एक हमारा छोटा सा काम और एक छोटी सी जर्नी है। इसके अंदर आप जैसे सब लोगों का सहयोग चाहिए होता है। कुछ ना करें जिंदगी में, कम से कम एक घोंसला लगाएं, बहुत ब्लेसिंग का काम है। आप लगाएंगे तो वाकई आपको अच्छा लगेगा। वो चिड़िया वाकई घर होती है, उसको मिलता नहीं है उस पत्थरों के अंदर कहीं, बेचारे पत्थरों के अंदर भी सब जगह। और पर्टिकुलर ये चिड़िया जो हर धर्म ग्रंथ में मेरे को लगता है इस चिड़िया का उल्लेख है, एक छोटी सी बुरी चिड़िया जिसे कहा जाता है, पर वो चिड़िया बहुत अच्छी थी। आप सब लोगों ने बचपन में चिड़िया को जरूर खेला होगा अपनी लाइफ, है ना। आप अपने बच्चों को भी ऐसे ही खाना खिलाते हैं। मैं अपने बेटे को ऐसे ही खाना खिलाता था, तो मैं एक हाथ से चिड़िया बना देता था, वो नहीं खाता था, तो मैं उसको चम्मच से दिखाता था कि देखो ये चिड़िया ने खा लिया, ये तुम्हारा खाना है, तो वो खा लिया करता था। वाकई हम लोगों से बहुत जुड़ी है। खत्म हमने करा है। हम लोगों के घरों में छतों के ऊपर पहले गेहूँ सुखाई जाती थी, पापड़ बढ़िया शायद सब घर में बनाई जाती थी, उसका फूड चेन होता था। हमने क्या करा, वो सब खत्म कर दिया। प्लास्टिक मैं बहुत बुरा भी मानता हूँ। आप लोग चिप्स खाते हैं, सब लोग खाते हैं चिप्स। हम क्या करते हैं, कितने कमाल का काम, हम चिप्स को कॉर्नर से फाड़ते हैं, ऐसे उस कॉर्नर को फेंक देते हैं, पैकेट हाथ में रखते हैं ना, खाने के बाद उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। लेकिन वो जो छोटा टुकड़ा सॉइल में जाता है ना, वो सबसे ज़्यादा बर्बाद करता है। कभी आप लोगों ने नोट करा, हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि हम फ्रूटी के डिब्बों से बैट आउट बनाते हैं। उनको कहते हैं कि उसमें रैपर लगा होता है, स्ट्रॉ को थोड़ा सा पुश करिए, स्ट्रॉ बाहर आ जाएगी, आप उसको भी डाल दीजिए उसके अंदर। हमारे जो बनाए हुए बर्ड हाउस मैं भेजूंगा मैं इनके पास, तो देखिएगा उसमें वो प्लास्टिक भी है, वो स्ट्रॉ भी है, और वो 70% पेपर का ही बना हुआ है, लेकिन इतना अच्छा है कि वो गलता नहीं है बारिश के अंदर, कम से कम 3 साल चल जाता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहिए।
बाकी आप लोग कुछ भी सवाल, कुछ भी आप इंटरेक्ट करना चाहें तो बताइए। एक गेम कर ले हम आपके साथ, है ना, बड़ी मजेदार गेम है। कौन आएगा पहले? आप आइए मैम, आइए आइए आप आइए। हाँ जी, क्या दीवार पे लगाना पड़ता है 12 उसमें कुछ नहीं रखना होगा। टेरेस पे लगाइए, लेकिन टेरेस पे लगाएंगे तो गिलहरी तोड़ देगी उसको, क्योंकि गिलहरी का वही सामान होता है जो सामान फंक्शन में होता है। ये बेसिकली बैम्बू स्टिक्स और जूट है, उससे बनाया है। कॉर्नर्स के अंदर लगाइए प्लेन वॉल के ऊपर, जहाँ गिलहरी का कर सकते हो और कैट भी कर सकते हो, या कॉर्नर्स के अंदर लगाइए। जैसे वो कॉर्नर है, वो कॉर्नर बिल्कुल कैट के अंदर लगाइए, और नहीं तो कैटा बैक कॉर्नर लगाइए, उसको वो बिल्कुल लकड़ी की तरह होता है, लेकिन लकड़ी नहीं है। लकड़ी का हम इसलिए बनाते हैं कि लकड़ी का बनाया तो बात नहीं होगी, पेट खड़ा हो वो बनाइए। नहीं तो आप अब तो बहुत अच्छे अच्छे अमेजोन वगैरह के डिब्बे आते हैं, बहुत हार्ड डिब्बे होते हैं, उनमें छोटा सा 1.25 इंच का एक होल करिए, उसमें एक बड़ा पत्थर रख दीजिए, उसके नीचे पुराना घर का टूथब्रश होगा, उसके ब्रशेस को काट के वो लगा दीजिए उसके बैठने की जगह, जहाँ से बैठ के वो अंदर जाएगी। 1.25 इंच का बॉटम से 5 उंगलियाँ ऊपर उसका होल करिए, बहुत सिंपल है। 5 उंगलियाँ ऊपर होल करिए उसमें, और उसको कहीं पे भी टांग दीजिए या टीम से लगा दीजिए, ऑटोमेटिकली वो घर बनाएगा। और नहीं तो यूट्यूब पे जाइए आप, राकेश खत्री हाउ टू मेक नेस्ट, उसमें आपको 3 तरीके मिलेंगे बहुत अच्छे तरीके से, उसके अंदर आप देख के घर के अंदर बना सकते हैं। पर लगाइए जरूर जिंदगी में एक बार ऐसे। आइए मैम, देखिए आपको मैम के पीछे एक मैंने एनिमल का फोटोग्राफ लगाया है। इनको नहीं मालूम, शी विल आस्क यू 10 क्वेश्चंस। क्या मैं ओमनीवोरस हूँ, पेड़ पे रहता हूँ, जंगल में रहता हूँ, उड़ता कितना तेज हूँ, मेरा रंग ये है, ये आपसे 10 सवाल पूछेगी। आप लोग सिर्फ यस और नो में आंसर देंगे, आप वो सवाल नहीं पूछेंगे जिसमें ऑप्शन हो। ऑप्शन नहीं होगा, बट ये यस और नो में आंसर देंगे आपको सिर्फ। So is it a bird or animal? नो, ऑप्शन नहीं। आप पूछिए या तो बर्ड हूँ मैं, एनिमल हूँ, ओमनीवोरस हूँ, हर्बीवोरस हूँ। Got it. Is it a bird? Yes. Is it colorful or just a single color? नो, नो, अच्छा, okay. एक पूछिए ना सिंगल क्वेश्चन। A single color. Yes. So can I answer color also? नहीं, आप पूछिए, आपकी मर्जी। ज्यादा कलर पे फोकस मत करिए, थोड़ा और आगे बढ़िए। बताना नहीं चाहिए। इधर आओ। आप ऐसे पूछो ना, आप नहीं नहीं, आप नहीं। Is it a domestic bird? नहीं नहीं, Is it a wild bird? sort of, पर नहीं होगा। Yes. No. Yes. If I can guess the answer, I can crow. Yes. Color green नहीं था, and omnivorous, so I. क्रो मुझे लगता है शायद बर्ड्स के अंदर सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बर्ड है, सबसे ज्यादा। और क्रो अकेला बर्ड है जो आपको शक्ल से याद है। क्रोस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो लोग, जैसे हम अपने बुजुर्ग बैठ के बातें करते हैं, क्रोस का अपना ग्रुप बैठता है और वो आपस में बातें करता है, डिस्कस करता है सारी चीजें सोशल जो भी होती है। और अगर क्या नाम था उसका, मेगा ने अगर उनसे पंगा लिया तो वो 5 किलोमीटर के पूरे एरिया के अंदर स्प्रेड कर देते हैं बाकी क्रोस के ग्रुप को कि मेगा जब भी निकले उसके सिर के ऊपर या कहीं पे भी चोट जरूर मारनी है। ये उनकी खासियत है। 1 गीगाबाइट की मेमोरी होती है। चलाने का सबसे अच्छा तरीका मोटी डंडियां लेके आता है, क्योंकि उड़ नहीं सकता, उसको लेके भारी होती है, तो पेड़ पे बैठ के ऐसे जाता है। पूरा घोंसला बनाने के बाद उसको लोहे की वायर से टाइट करता है चारों तरफ से। ये बड़ा कमाल है उसका। और उसके घोंसले में एक ही बच्चा बसता है, नॉर्मली एक ही बेबी होता है। रात को अगर वो 1:30 बजे भी आवाज लगाएगा तो कम से कम 100 करोड़ इकट्ठे हो जाएंगे वहाँ। ये खासियत है उसकी।
और ये बहुत बड़ा मिथ है शुरू से कि कोयल अपने अंडे कौवे के उसमें रख देती है। कैसे लाई उठा के पहले? थैंक यू। अब कौन आएगा? अब तो इजी है गेम। आइए सर। मैम को दिख गया? क्योंकि मेरा आज ना प्रोग्राम नहीं था वो, मैं तो मैं बहुत सारे काम। चलिए बर्ड है? नहीं। मैं आपको एक क्लू देता हूँ बहुत अच्छा। जहाँ मैं मिलता हूँ वहाँ टाइगर नहीं मिलता। चिड़ियाघर को छोड़ दो। बहुत मजेदार है। और इसका मैं एक और आंसर बताता हूँ। मैं नॉर्मली सवाल पूछूंगा मैम से, मैम वही जवाब देगी, गाय या डॉग। चलिए मेरा सोच रही हूँ कि मैं जल्दी बच गई। कलर नहीं। अच्छा मैं क्लू दे दूँ आपको। मैं दुनिया की हर सड़क पे मिलता हूँ। मैंने कहा था ना, या तो गाय बोलेंगी या डॉग बोलेंगी। नहीं, चलिए आगे। मैं फोटो आपसे प्रिंट करवा दूंगा आपसे। अपीयरेंस के बारे में क्वेश्चन। ऑस्ट्रिच मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। इंडियन एनिमल नहीं है पर बहुत पॉपुलर एनिमल है, बहुत ही पॉपुलर। वाइल्ड ही है। कुछ आप समझ रही हो। जिराफ से बड़ा होता है। इन तो गेम पढ़ने दो आगे। आप रोड से क्यों लो ना? हाँ, क्रो की मैं एक बात आपको बताना भूल गया। क्रो इतना इंटेलिजेंट होता है कि अगर उसको वॉलनट या कोई ऐसी चीज मिल जाती है तो वो रेड लाइट पे जाके बैठता है। जब रेड लाइट होती है तो छोड़ देता है। इशारा मत करिए। मैं बहुत खतरनाक टीचर हूँ। वो छोड़ देता है रेड लाइट पे। जब ग्रीन लाइट होकर गाड़ी निकल जाती है, छूट जाता है, तब खाता है। मैं फॉर्मल से आपको कुछ याद आ रहा है एनिमल से? चलिए मैम आप क्वेश्चंस करो ना, साइज, अपीयरेंस। चेस खेलती हैं आप? कभी नहीं, चेस से कोई लेना देना नहीं है। मैम मानेंगी नहीं, प्रिंट करवाए बगैर। आज पता लग रहा होगा ना जो बच्चे फंसते हैं तो कैसे बनते हैं। चलिए जी बताइए क्या क्या बोला आपको? कल समझाया था ना कौन सा जानते हैं? आज पता लग गया। देखा, वैसे आपको हर चीज कहती है, अरे इतना भी नहीं पता तुम्हें। आज पता लग रहा है कितना मुश्किल होता है स्कूल पढ़ना। साइज। चलिए हम ना अल्फाबेट खेलते हैं। और उल्टा ए फॉर बी फॉर जेड से शुरू कर दीजिए। आप सारे बैठे। थोड़े से कितने? 24 होंगे। मैं पूछ कैट। हाँ मैं पूछ रहा नहीं। आगे लास्ट आगे मौका दिया आज। पूरी रैगिंग करवा जा रहा हूँ। आगे चल आगे
जनरल नॉर्मली जब लेफ्ट वाला काम जाता है तो जब भी वजह से और राइट वाला किसी से लाता है। हॉस्पिटल मैंने इसलिए कहा था कि हॉस्पिटल भी अच्छा दोस्त है कि जब भी खतरा हो तो हॉस्पिटल और मैंने बैंक को पहले एक सिग्नल दिया था कि जहाँ टाइगर नहीं होता वहाँ जेब्रा लगता है और लाइन होता है, तो लेके करते हैं। बताइए कुछ तो बताइए। छत पे पानी रखते हैं, पानी देते हैं। और छत पे बाउल वगैरह में पानी। अच्छा, आप लोगों के घर में सबके घर रिलेटिव्स आते हैं, क्या करते हैं सबसे पहले? पानी देते हैं। नमस्ते नमस्ते कुछ नहीं, सीधा पानी। कैसे देते हैं पानी उनको? गिलास। अगर सपोज करो 6 लोग आए आपके घर में, आपने 6 लोगों को पानी दिया, 2 ने पिया, 2 ने आधा पिया, 2 ने बिल्कुल नहीं पिया, तो उस पानी को क्या करते हैं? ये मत कहना कि पेड़ों में डालते हैं, कोई नहीं डालता, फेंक देते हैं। तो आप एक प्रैक्टिस बनाना घर के अंदर, छोटी सी प्रैक्टिस। आप क्या करना, आपकी आवाज़ जग रखना और गिलास करके साफ तरीके से रखना। जिसको पीना है वो, किसी ने कहा आपके घर में कि मैम आपके घर का पानी पी के बहुत मजा आया, बड़ा अच्छा था, कहा किसी ने? तो पानी बर्बाद ही करते हैं ना हम लोग। लोग कहते हैं 1 बूंद बचाइए, तो अगर ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो कितना पानी बचाएंगे एक दिन में? अच्छा, उस पानी की जगह सॉफ्ट ड्रिंक होता और जिन्होंने नहीं पिया था उसका क्या करते? वो पी जाते है ना। और सॉफ्ट ड्रिंक कोई छोड़ता भी नहीं गिलास में। तो ये प्रैक्टिस बनाना है, क्योंकि ये मैंने वहाँ सीखी। मैं अजमेर के आगे गांव में गया था, हमारा आपको 1:30 बजे लाइट आती है, और जब लाइट आती है तभी सारा काम पानी का करते हैं वो लोग। चारपाई के ऊपर, चारपाई समझते हैं ना, खाट जो होती है, नहाते हैं, तो जितना पानी नीचे गिरता है उन्होंने नालियाँ बना रखी है, वो क्यारियों में चला जाता है सारा का सारा। जिसके पास नहीं है वही कदर करेगा। हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों के पास सबसे कीमती चीज़ क्या है आप लोगों के पॉकेट में अभी? मोबाइल के अलावा, चलो अब तो शायद मोबाइल सबसे ज़्यादा यूज होता है, उसके अलावा ATM कार्ड। कैसे यूज करते हैं ATM कार्ड को? अगर 5000 निकालने होंगे तो 10 बार सोचेंगे कि चलो 3 निकाल लेते हैं, बाद में निकाल लेंगे। तो नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग इस तरीके से क्यों नहीं यूज करते हैं? वो भी तो हमारी है ना। हमारी उम्र के जो लोग हैं, मैं 62 साल का हूँ, हमारी उम्र के लोगों ने शायद सबसे ज़्यादा बर्बाद किया होगा, मुझे लगता है एनवायरनमेंट को। हम लोगों ने आपको सबसे खराब एनवायरनमेंट दिया जो बच्चों को दिया है ना। इतना खूबसूरत फॉग होता था, हम लोगों ने आपको स्मॉग दिया। अब अगर आप लोग नहीं समझे या ये बच्चे नहीं समझे तो वो क्या देंगे आगे आने वाली जनरेशन को? तो इसलिए मैं हमेशा ये कह के चलता हूँ बच्चों को कि आप बैंक के हिसाब से चलिए, आप बचाएंगे तो बढ़ेगा। अगर आप बैंक में बचाते हैं तभी, ऐसा तो नहीं कि बैंक में आपने 2 रुपये डाल दिए और बैंक उसके ऊपर आपको ब्याज पे ब्याज देता जाएगा, नहीं देगा। जब तक बचाएंगे नहीं तब तक बढ़ेगा नहीं। और बढ़ाने का तरीका क्या है? बचाना। तो अगर आप लोग बचाना शुरू करेंगे, अपने से छोटे बच्चों को सिखाइए। बहुत सारे ऐसे केस होते हैं, हम लोग पेड़ लगाने की बात करते हैं कि चलो हर साल पेड़ लगा देते हैं। हम पेड़ तो लगा देते हैं, कितने लोग केयर करते हैं बाद में उसकी? तो जो लगे लगाए पेड़ है, अगर हम उन्हीं को केयर करना शुरू करें तो मुझे लगता है वो ज़्यादा फल जाएंगे, क्योंकि अब जगह तो नहीं है ना पेड़ लगाने की। हर साल करोड़ों की तादाद में, पता लगता है 40 करोड़ पेड़ लग गए हिंदुस्तान के अंदर। अगर 40 करोड़ लग जाएंगे तो आपको लगता है जंगल तो हम काटते ही चले जाना है। मैं जैसे यहाँ से मानिला रहता हूँ, उत्तराखंड के अंदर एक जगह है गाँव के अंदर, जिम कॉर्बेट से करीबन 62 किलोमीटर ऊपर है, जंगल है जहाँ मैं रहता हूँ। मेरा जो ज़मीन है मेरी, जहाँ मैंने घर बनाया, बिल्कुल वैली है, उसके आगे 300-400 किलोमीटर तक, और सामने नंदा देवी है। तो बहुत ही अच्छा मौसम रहता है, आता है, कभी 12 सिंगा भी आ जाता है वहाँ से। लेकिन वहाँ रहने के बाद ये लगता है, तो पूरे पैंडेमिक के टाइम में वहीं रहा था, क्योंकि मैंने वैक्सीनेशन नहीं ली थी तो मैं यहाँ काम नहीं कर पा रहा था, तो मैं वहीं रह रहा था। आप मुझे बताइए कि ऐसी जगह रह के अगर मैं इस उम्र में काम कर रहा हूँ अभी, तो बाकी मेरी उम्र में जो लोग होते हैं वो तो घर में बैठ जाते हैं इस टाइम, चलो हो गई रिटायरमेंट, छोड़ो यार क्या करना है। पर मैं अभी भी दिन के अंदर मैं फुटबॉल भी खेलता हूँ, आधा घंटा रोज खेलता हूँ। 4:30 बजे उठ जाता हूँ, 11:30 बजे सोता हूँ। काम खत्म करने के बाद घर जाके मैं साउथ की फिल्में भी देखता हूँ, एक्शन वाली, मुझे वो भी अच्छी लगती है। खाना भी बनाता हूँ, तो मैं कर रहा हूँ ज़िंदगी में। तो आप लोग तो यंग हो, आप लोगों के पास तो बहुत एनर्जी है, आप लोग तो मुझसे ज़्यादा कर सकते हैं। एक कमिटमेंट चाहिए बस, सेल्फ कमिटमेंट जिसे कहते हैं। दूसरे को कमिटमेंट देना बहुत आसान है, अच्छा यार देखो मैंने कमिटमेंट दे दी, तेरे से दोस्ती रखूँगा, ये करूँगा। अपने आप को कमिटमेंट देके उस काम को पूरा करना शायद सबसे ज़्यादा मुश्किल है। और मैंने यही कमिटमेंट अपने आप को दी थी, तो मैं करूँगा और करूँगा जरूर।
क्योंकि जिस हालात के अंदर मैं बड़ा हुआ, जिस हालात में पला बड़ा, वो शायद आज की जनरेशन के बच्चे वो चीज़ नहीं झेल पाएंगे। लेकिन हम लोगों ने बहुत कठिन टाइम झेला, उससे निकल के आए, तब के आए, और फाइनली सामने जब पूरा गोल आ गया, क्योंकि जैसे मुझसे उसने पूछा परसों कि अपने आप को गूगल पर सर्च करके आपको कैसा लगता है कि इतने सारे पेज खुल जाते हैं आपके फोटोज के साथ, तो कैसा लगता है? ये चाहिए, ये चीज़ चाहिए ना, हर आदमी को चाहिए होती लाइफ में। आज अगर मेरे साथ फोटो खिंचवाते हैं लोग तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और एक ज़माने में मैंने फोटो खिंचवाने में मार खाई थी अपने स्कूल की। रणधीर कपूर की शूटिंग चल रही थी, मैं भाग के पीछे से चला गया, मैंने कहा इसके से फोटो खिंचवा लेंगे। तब तो मोबाइल फोन होते ही नहीं थे, जो कैमरा मैन था उससे कहा, और इस चक्कर में हमने मार के दोबारा स्कूल में वापस भेज दिया। हम लोगों ने स्कूल से ये चीज़ें करनी शुरू करी थी, लेकिन धीरे धीरे सीख। मैं वैसे बहुत शरारती था स्कूल के अंदर। मेरी सबसे बड़ी शरारत ये होती थी स्कूल में, मैं बसों के बोर्ड बदल दिया करता था। दरिया में जाने वाली बस होती थी, उसको दिमाग को लगा दिया करता था, बहुत हंगामा करता था। तो मैंने एक स्कूल में भी जब लास्ट टाइम एक्सपीरियंस शेयर करा तो प्रिंसिपल ने हाथ जोड़ दिए, सर हमारे बच्चों को बस सिखाते। तो ऐसा नहीं है, शरारतें बहुत अच्छी, हमारे टाइम में बहुत अच्छी शरारतें होती थी, अब भी होती हैं, पर बात पहले ज़्यादा होती है, लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं। हमारे यहाँ शरारतें बड़ी हसीन हुआ करती थी और बहुत अच्छी होती है। जैसे दिवाली के टाइम पे पूरी कॉलोनी में एक भी लेटर बॉक्स नहीं बचता था, सब उड़ा देते थे हम लोग, उसमें रखा बम और आग लगा दी उसमें। तो ऐसा नहीं है, आप लोग करिए, बहुत अच्छा, आप लोगों के पास बहुत स्कोप है, आप लोग यंग हैं, आप लोग तो लॉ के स्टूडेंट है ना, लॉ तो एनवायरमेंट लॉ तो वैसे भी अब बहुत ज़्यादा। और ये आपको मैं बता दूं कि एनवायरमेंट का शायद आने वाले 10 साल के बाद सबसे ज़्यादा अगर जॉब क्रिएट होगी तो एनवायरमेंट के फील्ड में ही है। अब शुरू करा, बच्चों ने भी अब अपने माँ बाप को टोकना शुरू करा। पहले क्या होता था, माँ बाप कार में कुछ खाया और फेंक दिया, अब बच्चे टोक देते हैं कि गलत कर रहे हो। तो अब एक कॉन्शियसनेस तो आ गई है, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को सेल्फ कमिटमेंट एक जरूर देनी पड़ेगी कि मैं साल में करूं, लेकिन एक बार मैं ये काम करूंगा। और बताइए जी, बताइए। घर के अंदर तो लगा नहीं सकते हैं, बाहर लगा सकते हैं, लेकिन टेरेस है, टेरेस पे लगा सकते हैं। टेरेस पे बिल्कुल लगाइए। ईगल आता है, नहीं ईगल उसको बच्चे को नहीं निकालेगा, कैट हैं? कैट एंड ईगल आता तो ऐसी चीजें लगाइए ना तो प्लेन चलिए उठा, वो पहुंच ना सके। है, उसको लगाना पड़ेगा। हाँ, बोल कील लगा के उसको दीवार के बीच में लगा दीजिए, दिल्ली ना चढ़ पाएगा। कैट की कुछ रहेगी, ईगल आता है। ईगल उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा, बहुत छोटा सा चाहिए। तो उसका भी एक तरीका है, अगर आपको लगता है ईगल आ रहा है तो टॉयलेट पेपर का जो रोल होता है वो उसके मुंह के ऊपर लगा दें, तो वो मुंह से इतना आगे आ जाएगा, वो ईगल जाए। काइट आती होगी बेसिकली, ईगल नहीं काइट होगी, वो नहीं आएगी। आप लोगों को बर्ड्स खूब पहचानते हैं, अपने बर्ड्स को देखते हैं आप? क्रो और पिजन को छोड़ के मुझे 5 कॉमन बर्ड जो आपके घर के पास मिलते हैं उनके नाम बताएंगे। और कुक्कू बर्ड कौन सा होता है? मैं भी ढूंढ रहा हूँ उसको बहुत दिनों से, कौन सा होता है? कोयल। कोयल, हाँ कोयल, कोयल देखिए आप लोगों ने? कैसे कलर की होती है? नहीं वो सनबर्ड है। कैसे रंग की होती है? ब्लैक। मेल या फीमेल? मेल ब्लैक होता है रेड आइज के साथ, फीमेल कॉफी ब्राउन होती है व्हाइट पैचेस के साथ। गाता कौन है? 85% बर्ड्स के अंदर मेल गाता अट्रैक्ट करता है, फीमेल नहीं गाती, मेल गाती हमेशा। हाँ, और कौन सा एक रह गया? वो ऐसा लगता है जैसे बहुत सारा कचरा कहीं लटका हुआ है, उसके अंदर घर बनाता है वो, बिल्कुल जेम जो चॉकलेट वाली आती है उसमें बड़े अंडे देता है वो। और ब्राउनिश उसकी फीमेल होती है, बहुत तेज बोलता है, नेक्टर खाता है फूलों के ऊपर से। एक बर्ड आपने और देखा होगा, ब्लैक ड्रॉन्गो होता है, तारों के ऊपर बैठा हुआ देखा होगा, उसकी टेल लंबी होती है, वी शेप में होती है इस तरीके से। उसको बोलते हैं चिड़ियों का कोतवाल, चिड़ियों की पुलिस बेसिकली। जहाँ वो घर बनाता है उसके आसपास छोटी चिड़िया बहुत घर बनाती है, तो उससे क्या होता है वो प्रोटेक्ट करके रखता है उनको। वो चील से भी लड़ जाता है, वो जब वल्चर होते थे उनसे भी लड़ जाता था, और उनको कई मील तक ऊपर उड़ा के आ जाता है बेसिकली। ऐसे ही एक दिल्ली में बड़ा बहुत आना शुरू हुआ है अभी, रूपस ट्री पाइकर कहलाता है। येलो कलर का, टेल लंबी होती है, बहुत अच्छी आवाज में बोलती है पेड़ों के ऊपर बैठ के। वो पहले सरिस्का वगैरह राजस्थान में बहुत मिलती थी। उसको बोलते हैं टाइगर का कॉलगेट बेसिकली। जब टाइगर खाना खा के सो जाता है तो वो मुंह खुला रखता है अपना,
तो जितना फ्लैश हल्का होता है वो सारा उसमें से वो निकालती है, तो इसलिए उसको टाइगर का कॉलगेट बोलते थे। तो ऐसे बहुत सारी नेचर में आप देखेंगे एक कमाल से कमाल चीज़ें। और ये बर्ड्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो आपको बहुत जल्दी पहचानते हैं। हम लोग आदमी को नहीं पहचान पाते, हमेशा गलती करते हैं। हमारे घर में हमारी मदर, वाइफ या बहन वो शायद बहुत जल्दी हमारे दोस्तों का आकलन करके बता देती है कि आपको कितना धोखा देगा और कितना आपका साथ देगा। हम लोग नहीं पहचान पाते, लेकिन बर्ड्स आदमी को बहुत अच्छा पहचानते हैं, उसकी आंखों से पहचानते हैं। उनको फट पता चल जाता है कि ये आदमी हमें नुकसान करेगा या नहीं करेगा। ये उनकी खासियत। सर एक और बर्ड है जिसके सिर्फ क्राउन रहते हैं, छोटी-छोटी सी रहती है, कॉमन ओपी, कॉमन ओपी। वो भी आजकल हाँ, एक और होता है बर्ड जो बहुत फेमस रहता है, आपको भी यहाँ कहीं दिख जाता होगा। वो 7 इकट्ठे रहते हैं, 7 बर्ड्स। 7 उसको बेसिकली पंजाबी में 7 भाई बोलते हैं, सरप्रावा। वो 7 इकट्ठे रहते हैं, जंगल बैबलर उसका नाम। और ये कॉमन ओपी जो है ये बचपन में आप लोगों को याद होगा, स्कूल में कभी दिख जाता था तो बच्चे उसके चारों तरफ चक्कर मारते थे कि स्कूल हो जाए, ऐसा होता था। लेकिन वो बहुत अच्छा बर्ड है, वो आजकल मिलता है, लेकिन वो ऐसा घोंसला नहीं बनाता। वो दीवारों के अंदर जो होल होते हैं पैराकिट की तरह, उन्हीं में घर बनाता है। कॉमन लगता वो बेसिकली वुड पैकर की तरह लगता है। वुड पैकर कलरफुल होता है बहुत ज़्यादा, ये कलरफुल नहीं होता। सर एक और बर्ड है बहुत रॉबिन, व्हाइट कैट होता है, स्टोन। फुल ब्लैक है, इतनी छोटी सी ब्लैक कलर की, और एक होती है उसके छोटी सी ऊपर जैसे कलकी होती है वैसे वो बुलबुल है, रेड कलर। वो बुलबुल। बुलबुल एक अकेला बर्ड है जो मनी प्लांट्स के ऊपर घर ज़्यादा बनाता है। बड़े पत्ते के जो मनी प्लांट होते हैं उस पर घर बनाता है, या कहीं फाइकस का जो पेड़ होता है घना। हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही, हम लोगों ने चिड़ियों को क्यों भगाया? हम लोगों ने ऑर्नामेंटेड ट्रीज तो लगाए। वो बुशेज उनके लिए सबसे ज़्यादा मुफीद होती थी घर बनाने के लिए, कि वो झुंड होता था पत्तों का, तो उसके बीच में वो चली जाती थी। हमें जब भी लगाना चाहिए कांटेदार पेड़ ऐसे लगाने चाहिए, बेर हो गया या इस करौंदा हो गया, इस किस्म के जो अंदर जाके वो घर बना ले, जिससे बड़ा प्रे बर्ड अंदर ना जा सके। हम वो लगाते ही नहीं। हम एक बार उनको इन्वाइट करेंगे, उनको अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली हमारे पास पलट के आएंगे। और बर्ड्स बहुत लविंग नेचर के होते हैं। और वैसे भी नेचर को ना कोई हमारी ज़रूरत नहीं, हमें ज़रूरत है नेचर की। नेचर को हमारी कोई ज़रूरत नहीं, वो तो चल रही है। तो जब वो पलटा मारती है तब हमें बुरा लगता है कि नेचर ने ऐसा कर दिया। यही कुछ बातें जो आप सीख सकते हैं, कर सकते हैं। आप बताइए और कुछ। सर जी सर, अगर मैं नेचुरली तोतों को अगर अट्रैक्ट करना हो तो क्या कर सकते हैं? अगर तोतों को अगर नेचुरली अट्रैक्ट करना हो आपको, उबला हुआ चावल डालिए उनको खाने के लिए, क्योंकि ना दिल्ली में बहुत ज़्यादा दिखने लगेगा। और दिल्ली में से क्रो गायब हो गया, क्रो बहुत जल्दी गायब हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। किसी बेवकूफ़ इंसान ने नॉर्थ इंडिया के अंदर ये एक अच्छी खासी हवा चला दी, तो उसको बहुत मारा जाता है। क्रो को बहुत पकड़ा जाता है। और क्रो के बाद जो सेकंड नंबर है वो डंकीज का। आपने देखा होगा ब्रिटिश दिखने बंद हो गए धीरे धीरे। उनको हैदराबाद सबसे ज़्यादा उस बेल्ट के अंदर स्मगल किया जाता है, ट्रकों में भर के। इसे हम लोग कई बार छापे मारते हैं बहुत। मैं उतना एक्टिविज्म तो नहीं करता, और हम लोग कछुओं के लिए बहुत छापे मारा करते थे कि मथुरा से और गंगा की बेल्ट से बहुत कछुए लाए जाते थे ट्रकों में भर के। ऊपर के हिस्से में फिश रखी जाती है, नीचे कछुआ की जो बेल्ट है उस बेल्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे बूचड़ हैं जो उन कछुओं को बेचते हैं खाने के लिए। और उसको मारने का तरीका बहुत दर्दनाक होता है, उसके ऊपर चढ़ जाया करते हैं, उससे उसका फ्लैश बाहर आ जाता है। तो लोग मतलब ये कभी कभी समझ में नहीं आता। जैसे माइग्रेटिंग बर्ड आते हैं उनको मारते हैं लोग, उनको क्यों मारते हैं? और वो माइग्रेटिंग बर्ड आते हैं तो बेचारे हमारे विश्वास पे ही आ रहे हैं यहाँ ना। एक अच्छा उनको रहने की जगह मिल जाती है उस दौरान में, और उनको भी मारने सबसे ज़्यादा क्या करें। तो मुझे याद है, शायद मेरे फादर, मैं बहुत छोटा था तब कहा करते थे कि इंसान से ज़्यादा और डरना कोई नहीं है आदमी। क्योंकि इंसान क्या करता है, वो जितना खाता जाता है उतनी उसकी भूख बढ़ती चली जाती है। और जानवर जैसे खासियत ये कि वो एक बार खाता है, उसके बाद वो कम से कम 1 हफ्ते तक कुछ नहीं खाता। टाइगर का भी यही होता है, वो एक शिकार करता है, टाइगर जब करती है सब लोग खा लेते हैं, उसके बाद उसको खाने को छोड़ देते हैं। फिर उसमें गीदड़ भी खाता है, उसमें हायना भी खाता है, उसके अंदर गिद्ध भी खाते हैं, उसमें चील कौवे भी खाते हैं खाना, वो सब उसमें से शेयर करते हैं। और वो हफ्ते में एक ही बार शिकार करता है जब भूख लगती है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जितना खाना खाते जाते हैं उतनी भूख बढ़ती चली जाती है। अगर आप रेस्टोरेंट से काउंट करें तो हम पहले खाना खाएंगे, फिर मीठा खाएंगे, फिर आइसक्रीम खाएंगे, फिर जूस पिएंगे, फिर घर आके कॉफ़ी भी पिएंगे एक बार। जैसे चलो कॉफ़ी भी बना लेते हैं, अब थोड़ा सा मन कर रहा है कॉफ़ी का। ये नॉर्मली इंसान की फितरत है, या खाने में हो वो बढ़ती चली जाती है।
से एक कार लेने के बाद दूसरी कार लेने के बाद चलो एक मोटरसाइकिल भी ले लो, छोटे रास्ते में जाना हो तो उससे चले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि नीड को थोड़ा सा कंट्रोल करके अगर हम करें तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी दुनिया है। हमारी बायोडाइवर्सिटी शायद वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अच्छी है कि हर 50 किलोमीटर के बाद बायोडाइवर्सिटी जानवर ये सब बदल जाते हैं। हाँ, कौवे का मैं आपको बता रहा था, कौवों की लैंग्वेज हर 50 किलोमीटर के बाद बदल जाती है, बोलने का तरीका बदल जाता है। ये नोट करिएगा, कभी पता चलेगा। बताइए जी। हाँ बोलिए ना। उसको तो बैठते हैं, ये खाते हैं, उसको एग्रेट बैठता है, व्हाइट कलर की जिसे बगुला कहते हैं छोटा, वो बैठता है, वो एग्रेट कैटल है, वो खाती है। जैसे गाय कभी गर्मी में कहीं बैठ जाती है, गोबर या कुछ मिट्टी लग जाती है तो कीड़े हो जाते हैं, तो वो निकाल के खाते हैं। गाय का भी वही है ना, जैसे हमारे यहाँ कहाँ से आया, आप लोग कमाल करते हैं, आप गाय की पूजा करते हैं, उसको माँ बोलते हैं, लेकिन उसको खाना प्लास्टिक की थैली में देते हैं। तो मतलब वो इतनी अकलमंद है कि पहले थैली को फाड़ेगी फिर खाएगी, वो बेचारी थैली के साथ ही खा जाए। मतलब अभी वो बच्चा बहुत अच्छी बात बता रहा था कि हम लोग प्लास्टिक यूज करते हैं, प्लास्टिक फेंक देते हैं, वो प्लास्टिक ट्रकों में भरता है, ट्रकों से भर के वो ओशन में फेंक दिया जाता है, फिर मछलियाँ उसको खाती हैं, फिर मछलियों को हम खाते हैं, उसके पेट से प्लास्टिक निकलता है। मेरे बेटे ने जो बेसिकली वाइल्ड लाइफ में काम करता है, एक टर्टल का ऑपरेशन करने में उनको 7 घंटे लग गए थे। स्ट्रॉ उसकी नाक के अंदर थी और वो स्ट्रॉ को अगर खींचें तो उसके अंदर के पूरे वो निकल आएंगे, तो उसको इतना नाखून से भी छोटा छोटा करके काटना पड़ा, धीरे धीरे पुश करके। 7 घंटे के बाद जाके स्ट्रॉ उसकी नाक से निकली। और हम लोग प्लास्टिक को कहीं भी मिलता है वहीं डंप कर देते हैं। ये हमारी गलती है, हम लोग कर रहे हैं गलती। और इंसान शायद गलतियाँ करने के लिए पैदा हुआ है कि पहले गलती करता है, फिर दूसरे पे डालता है, फिर दूसरे से करता है, फिर तीसरे पे डाल, वो चेन बना देता है रिले रेस की तरह। हम लोग कभी ये नहीं मानते कि हमने गलती कर दी और उसको सुधार लें। सुधारना कोई आसान, मतलब बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप बहुत आसानी से सुधार सकते हैं। आपको मैंने पानी की बात बताई तो आपके दिमाग में आया ना कितना पानी बर्बाद करते हैं? आया जी? और कुछ पूछिए सर, सवाल कुछ तो पूछिए जो मन में आए। आप मैम? सर बर्ड्स आपने देखे हैं वो वी शेप में साथ में घूमती हैं। हाँ, और सर्कल में घूमती रहती है। आई थिंक पिजन्स घूमते हैं, वाइट पिजन्स या पिजन्स एक साथ एक सर्कल में घूमते रहेंगे। तो वो जब उनको छोड़ा जाता है उड़ने के लिए तो वो ट्रेंड होते हैं। नहीं, वो उनका उड़ने का तरीका वही है। आपको शायद आपको नहीं देखने को मिलता। पहले तो आपको आसमान में डिफरेंट किस्म के शेप्स के अंदर बर्ड जाते हुए दिखाई देते थे शाम को, अब नहीं दिखते ना, अब नहीं दिखते। वो कबूतर जो आप बता रहे हैं वो पालतू होते हैं सारे, लेकिन जब उसको छोड़ते हैं तो वो एक ही फ्लो में उठते हैं सारे, वो एक फ्लो में उठते हैं हमेशा, वो अलग अलग नहीं जाते कि जैसे आधे इधर चले गए आधे इधर। वो उनको वो जो नीचे डंडी घुमा रहा होता है ना, उनको जो रस्सी से दिखा रहा होता है, वो उसी की डायरेक्शन में पूरा चक्कर काटते हैं। जी बताइए। क्रो के बाद बहुत सारे ऐसे बर्ड हैं जो उस कैटेगरी में आते हैं, लेकिन होता क्या जा रहा है ना, हम लोग बर्ड्स को पहचाना तो भूल ही है, हम लोग फोटो में और गूगल में देखने के आदी होते हैं। मैंने बचपन में जब मैंने फिल्म मेकिंग शुरू करी थी तो शायद बचपन बच्चों के लिए बहुत अच्छी एक फिल्म बनाई थी, जिसमें एक टाइगर की फैमिली थी पूरी, तो शहर में आती है, बार्टर सिस्टम में एक फैमिली से एक टाई अप करते हैं कि हम 15 दिन आपके घर में रहेंगे, 15 दिन आप जंगल में जाके रहो। वो फैमिली जंगल में चली जाती है, वो शेर उनके घर में आके अपनी फैमिली के साथ रहता है, उनके पूरे घर को साफ करते हैं वो लोग, किचन से लेकर के बाथरूम तक सब बिल्कुल टाइड अप कर देते हैं उनके घर को। तो 15 दिन जब आते हैं तो वो की एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से, तो वो देखते हैं हमारा घर बहुत साफ है। तो टाइगर उनको जाने से पहले कहता है कि अच्छा हमने आपका घर बहुत साफ करा, लेकिन हमें ये मालूम है कि आप हमारे घर की क्या हालत करके आए होंगे, वो हमें अब जाकर कितना साफ करने में टाइम लगेगा वो हम समझ सकते हैं। तो ये एक बड़ा छोटा सा मैसेज था जो मैंने सबसे पहले एक एनिमेशन फिल्म बनाई थी, पेपर्स को काट के हम लोगों ने जोड़ के बनाई थी। तो कर रहे हैं अपनी अपनी जगह। मैं जैसे अभी बॉम्बे गया था तो एक ऑटो वाले से मिला, बहुत इंस्पायर हुआ मैं उससे, ऑटो वाले से। मैं उसकी ऑटो में बैठा था तो उसने मुझे बताया कि चल 1 मिनट लगेगा सर, मैं जरा थोड़ा सा काम कर लूँ। मैंने कहा क्या? तो सड़क के किनारे एक ट्री गार्ड में एक पेड़ लगा था, उसने उसको खोद के थोड़ा सा खाद डाली, पानी डाला, अपनी ऑटो में से एक कैन रखा हुआ था उसके पास, और वो निकाल के उसने उसमें डाला। तो मैंने उससे पूछा क्या करते हैं? संतोष कुमार गुप्ता उसका नाम है।
तो उसने मुझसे कहा मेरे संग 500 ऑटो वाले जुड़े हुए हैं बॉम्बे से और थाने तक के एरिया के अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं, हर महीने 200-300 रुपए जो हमारी पॉकेट अलाउड करती है, हमने एक फंड बना रखा है। हम लोग अपनी गाड़ी के अंदर खाद, खुरपी और पानी रखते हैं। जहाँ भी कभी ऐसा पेड़ नहीं मिलता हमारे को, तो हम उसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट देके फिर आगे निकल जाते हैं। तो उसके मन में आया, हमारे मन में नहीं आता ना। हम तो कूड़े का ढेर अगर हमारे घर के पास से कहीं जहाँ से आ रहे हैं निकल के, हम रोज देखेंगे उसको, हम रोज उसके ऊपर से आँख बंद करके पार कर जाएंगे, वापस आएंगे फिर पार कर जाएंगे, पर ये कभी नहीं सोचेंगे कि हम इसको ठीक कर दें। वो हमारी गलती है। सर मूवी भी तो आई थी बर्ड्स की माइग्रेशन हैं? बर्ड्स की मूवी भी तो आई थी माइग्रेशन। अभी जो आई है, हाँ फिर पहले भी देखिए आपने जो अक्षय कुमार की फिल्म आई थी, देखिए आपने अभी जो एक फिल्म रजनीकांत के साथ आई थी उसमें अब क्या देखिए दोबारा, तो उसके टाइटल्स देखिए, उसके अंदर स्क्रिप्ट में मेरा नाम है, बहुत स्पेशल कैटेगरी में नाम डाला है उन्होंने। मैंने उसकी स्क्रिप्ट के ऊपर बहुत काम करा था उनके साथ, और बाद में फिल्म बनते बनते वो बिल्कुल ही चेंज हो गया, वो पूरी की पूरी कंप्यूटराइज बन गई उसके। पहले बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था उसका उनका, और ऐसा नहीं है जैसे बहुत लोग कहते हैं कि टॉवर्स ने नुकसान कर दिया, टॉवर्स की वजह से बर्ड चले गए। मेरे जितने घोंसले लगे वो टोल प्लेसेस के ऊपर लगे, हर घोंसले के अंदर बर्ड है, और उस टोल टावर के ऊपर कम से कम 8-8, 9 टावर्स लगे हुए। मैंने कोई साइंटिफिक रिपोर्ट नहीं पढ़ी अभी आज तक, ना कोई छपी है, लेकिन लोग कहते हैं कि टावर्स होता है नुकसान, कुछ ना कुछ होता होगा, वो चिड़िया अपना रास्ता भूल जाती है शायद थोड़ा सा, या कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन कुल मिला के यही है कि आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे ना तो वापस आएगा। कितना उनको नेचर सपोर्ट करती है, जब बसंत पंचमी के बाद पतझड़ का थोड़ा सा मौसम शुरू होता है तो नीम की डंडियां गिरती हैं। एक अकेला पेड़ है वो नीम, जिसकी डंडियां गिरती हैं, उसकी पत्तियां अलग हो जाती हैं। 65% बर्ड्स उन्हीं नीम की डंडियों से अपने घोंसले बनाते हैं। टेस्ट नहीं लगता उसके अंदर, फ्लेक्सिबल होती है, मुड़ जाती है, सिर्फ इसलिए। तो इतना तो हम भी कर सकते हैं। मैं बच्चों को यही सलाह देता हूँ, अपने स्कूल के अंदर, अपनी कॉलोनी में, कहीं पे भी आप रुई, पुराने धागे, कुछ डंडियाँ ये ले जाके रखिए, चिड़ियाँ आएंगी उनको उठा के ले जाएंगी, अपना घोंसला बनाएंगी। एक सपोर्ट तो दे ही सकते हैं ना, हमने उनका घर छीना है तो कम से कम ये सपोर्ट तो दे सकते हैं। एनीथिंग एल्स? वो सिर्फ पिजन बनाता है बस, तो वो उनके लिए सेफ रहता है अगर वो वहाँ बना देते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। पिजन से बड़ा आलसी पक्षी कोई नहीं है, वो 4 डंडियां रख के ले कर देता है। आप अपने घर में बालकनी 4 दिन बंद रखिए, पता चलेगा वहाँ बाहर कोई कुर्सी रखी थी उसके ऊपर रख देते। तो पिजन का है, पिजन को हम लोग खाना देते हैं, हमें लगता है हमारा पुण्य सुधर रहा है, ऊपर हमारे लिए स्वर्ग में जगह बन रही है, पर कितना नुकसान करते हैं वो लोग। दिल्ली मैंने देखा शायद अकेला ऐसा शहर है जहाँ फ्लाईओवर के ऊपर दाना डालने वाले बैठे हों, और वो दाना डालते हैं, गाड़ियाँ निकलती हैं, कई बार जैसे वो कबूतर होते हैं वो लग जाता है, उसका फर बहुत खतरनाक होता है। मुझे बीइंग एनवायरमेंटलिस्ट नहीं कहना चाहिए, वो अस्थमा पेशेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है, तो वाइट फर होता है, और उसकी ड्रॉपिंग सबसे ज़्यादा खतरनाक है जो डोमेस्टिक पेट्स के लिए। मैंने अपने 3 लैब्राडोर पैंडेमिक के टाइम में सिर्फ कबूतरों की वजह से खोए थे। उन्होंने वो उनकी ड्रॉपिंग को चाट लिया था, और पूरा एसिड की वजह से उनकी बॉडी में पूरे छाले पड़ गए थे, आप सोचिए। तो इतना खतरनाक होता है उसका, पर हम लोग देते हैं खाना उसको, हमें लगता है कि नहीं कबूतर को खाना देना चाहिए, और कबूतर ही सबसे बड़ा कारण है और दूसरे बर्ड्स को अपने पास से हटाने का। जबकि स्पैरो सबसे अच्छा बैरोमीटर है एनवायरनमेंट का, वो ये बताता है कि कौन सा सिस्टम हमारा जो इकोसिस्टम है कितना अच्छा है। वो पहले वो कीड़े खाया करती थी, लार्वा, टिड्डियाँ या मच्छर, और उसके बाद जब वो धीरे धीरे खत्म हो गई तब ये बीमारियां और ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा चौकीदार भी है, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते। एनीथिंग एल्स?